Hello students, welcome back to my channel Prosper Education. Today in this video I'll explain you the remaining questions of exercise 1.1. In my previous video I've already explained till question number 7. Now I'll explain from question number 8 to question number 10. So without any further ado, let's start. So here it is question number 8. Verify A minus B is equal to A plus B for the following values of A and B. Students, जब भी आपके सामने वेरीफाई के क्वेश्चन आते हैं और दोनों साइड्स पे कुछ टर्म्स दिए हुए LHS एंड RHS, तो उसको अलग से प्रूव करना रहता है. यहाँ पे हमारे पास है A minus B is equal to A plus B. So we need to solve this separately and then we need to prove that LHS is equal to RHS. See students, it is very clear. यहाँ पर दो माइनस की साइन है, ऑब्वियसली दो माइनस की साइन यहाँ पर बन जाएगी प्लस, तो ये रिजल्ट ट्रू है, ये हमें ऑलरेडी पता है, बस हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है. सो द फर्स्ट पार्ट इज A is equal to 21, B is equal to 18. Our LHS will be A minus B. So in place of A I'll write 21, in place of B I'll write 18. Now minus will become plus, so 21 plus 18 is 39. Similarly RHS, here it is A plus B, 21 plus 18 directly 39. As our LHS is equal to RHS, hence this result is verified. Okay. Similarly, we have to do the second part. Here the value of A is 118 and the value of B is 125. LHS is equal to A minus B, 118 minus 125. These two minus sign will become here the plus sign. Then addition of these two will be 243. RHS now, A plus B, 118 plus 125, that is 243. As LHS is equal to RHS, hence our result is verified. Okay. Next, third part. Similarly, only the value of A and B is continuously changing. Here A is 75 and B is 84. Again the same way, 75 minus 84, that is 75 plus 84, that is 159. On the other side we have RHS, 75 plus 84, that is 159. LHS is equal to RHS, therefore our result is verified. Okay. Then fourth part, A is 28 and B is 11. Similarly, 28 minus 11, so 28 plus 11, that is 39. Here 28 plus 11, 39. Both the side the value is same, therefore result is verified. Okay, this was very simple question. Next we have question number 9. Here use the sign greater than or less than or equal to in the box to make the statements true. यहाँ पे हमें साइंस को यूज़ करना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए. यहाँ पे हमारे पास दो कुछ इंटीजर्स हैं, यहाँ पे भी इंटीजर्स हैं, उन पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाइड किए हुए हैं, उनको कम्प्लीटली सॉल्व करना है और फिर बताना है कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, या फिर दोनों इक्वल हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी हैव -8 प्लस -4. सो -8 को तो ऐसे ही रखेंगे, पहले यहाँ पे प्लस माइनस है तो वो बन जाएगा माइनस, एंड देन -8 -4 विल बिकम -12. While on this side we have -8 minus -4. यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो आंसर होगा -8 + 4, फाइनल आंसर हुआ -4। ओके, अब -4 और -12 में से ऑब्वियसली -4 बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली पार्ट बी, -3 + 7 -19, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -3 + 7 हो जाएगा 4, फिर -19 एज इट इज। नाउ 4 - 19 इज -15। ओके, दिस साइड वी हैव 15 - 8 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस पहले यहाँ पे बन जाएगा माइनस। अब 15 - 8 यहाँ पर होगा 7 -9 एज इट इज, then 7 - 9 is -2. Which side is greater? Obviously -2 is greater. Okay. Part C, 23 - 41 + 11. अब 23 - 41 हुआ -18 + 11 as it is, -18 + 11 होगा -7. While on this side we have 23 - 41 तो -18 -11, माइनस माइनस होगा क्या, प्लस। सो 18 और 11 हुए 29, और साइन बड़े डिजिट की, दैट इज माइनस। डी पार्ट वी हैव 39 ± 24 -15, 39 प्लस माइनस होगा -24 -15, 39 - 24 हुआ 15, और ये 15 नीचे, दैट इज 0। जबकि यहाँ है 36 + -52 -36, 36 एज इट इज, यहाँ पे प्लस माइनस का हुआ माइनस, और यहाँ माइनस माइनस का हुआ प्लस। 36 - 52 हो जाएगा -16, फिर +36, सॉल्व करने पर आएगा आंसर 20। Here 20 is greater than 0. Okay. Next we have part E here. -231 + 79. माइनस प्लस पहले होगा माइनस, तो आंसर आया 152। यहाँ पे 51, सॉल्व करने पर आएगा -101। Here we have -399 + 159, इसका हुआ -240। 81 एज इट इज, इसको अगेन सॉल्व करने पर आया -159। सो -101 इज ग्रेटर देन -159। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, अ लिटिल tricky and a interesting question. See students, here it is given that there is a water tank which has steps inside it. In the first case, the monkey is sitting on the topmost level, that is at the step 1, while the water level is at the 9th step. Okay, so it is given कि सबसे पहले यहाँ पर एक वाटर टैंक है जिसमें अंदर की तरफ सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं। ओके, अब टोटल देयर आर 9 स्टेप्स, ठीक है। मंकी जो है वो पहले फर्स्ट स्टेप पर है, और जो वाटर लेवल है विच इज़ एट द 9th स्टेप। अब यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि जो मंकी है वो पहले 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है, बाद में वो 2 स्टेप्स अप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो 1 पे है तो 3 स्टेप्स डाउन, मतलब वो कहाँ पहुँचेगा, 4th पे। लेकिन फिर वो नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर आता है 2 स्टेप्स। सो पहले फर्स्ट पे था, फिर 4th पे गया 3 स्टेप्स डाउन, और फिर वापस ऊपर आया 2 स्टेप्स, तो वापस से वो कहाँ पहुँच गया, 2nd स्टेप पे। ओके, तो बोला है कि कितने जंप्स में वो वाटर लेवल पर पहुँचेगा, मतलब वो ऑल इन कितने स्टेप्स लेगा, मतलब कितने जंप्स लेगा कि वो 9th स्टेप पर पहुँचेगा। सी, इनिशियली द मंकी इज एट स्टेप 1, शुरुआत में मंकी कहाँ है, स्टेप 1 पर है, जबकि जो वाटर लेवल है वो है स्टेप 9 पर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ stands for according to question,
The monkey jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. अब स्टूडेंट्स नंबर्स कैसे हैं, पहले सीढ़ी है 1, फिर 2, 3, 4, सबसे अंदर जो सीढ़ी है वो है 9th और सबसे ऊपर जो सीढ़ी है 1. तो जब मंकी नीचे जाएगा तो उसकी वैल्यू में इंक्रीज होगा, प्लस करेंगे. जब वो ऊपर जाता है तो हम माइनस करेंगे. तो पहले वो 1 पे था, पहला जंप उसका क्या था, 3 स्टेप नीचे, तो हमने यहाँ पे किया +3. सेकेंड जंप अब वो ऊपर जाएगा तो -2 करेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2. थर्ड में अब वो फिर नीचे जाएगा तो सेकेंड से नीचे गया 3 तो 5, फिर 2 ऊपर तो फिर से 3, फिर 3 नीचे 6, फिर 2 ऊपर गया 4. नेक्स्ट फिर 3 नीचे आया 7 पे, अब फिर ऊपर जाएगा 5, फिर 3 स्टेप्स नीचे 8, अगेन 2 स्टेप्स अप 6, and then at last 3 steps down. That means it will reach at step 9. That means after 11 jumps the monkey will reach at step 9. Okay, once again I'll explain you this. इस क्वेश्चन में गिवन है कि मंकी है एट द स्टेप 1 और उसको पहुंचना है स्टेप 9 पर वो एक पैटर्न में जंप ले रहा है, 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है और वापस 2 स्टेप ऊपर आता है. तो 1 से हमने शुरू किया था, पहले 3 नीचे तो 1 + 3 4, फिर 2 ऊपर तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 नीचे तो +3 -2 +3 -2, then +3 -2, again +3 -2 and last +3. ओके, तो उसको कितने जंप्स लगे इन टोटल, 11 जंप्स टू रीच एट द वाटर लेवल विच इज एट स्टेप 9. ओके, नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट कि पानी पीने के बाद अब उस मंकी को वापस ऊपर जाना था, मतलब अब वो कहाँ पे है, एट स्टेप 9 और उसको पहुंचना कहाँ है, एट स्टेप 1. अभी वो एक पैटर्न में जंप कर रहा है. अब वो किस पैटर्न में जंप कर रहा है कि वो 9 से पहले 4 स्टेप्स ऊपर जा रहा है और बाद में वो 2 स्टेप्स नीचे आ रहा है. अब मैंने पहले ही बताया था जब वो ऊपर जाएगा तो हम माइनस करेंगे, जब वो नीचे आता है तो हम प्लस करेंगे. तो पहले वो 9 स्टेप पे था, -4 करेंगे, ऊपर जा रहा है इसलिए, तो 5 पे पहुंचा, फिर 2 नीचे आया तो प्लस करेंगे तो 7, फिर ऊपर गया तो -4 तो 3, फिर नीचे आया +2 5, फिर ऊपर गया 4 स्टेप्स तो 1. तो उसको इन टोटल यहाँ पर कितने जंप्स लगे, 5 जंप. दैट इज आफ्टर 5th जंप मंकी विल रीच एट पॉइंट 1. Therefore after 5 jumps he will reach at step 1, that is at the top level. Okay, see students, पहले केस में उसको कितने जंप्स लगे, टोटल 11, और सेकेंड केस में उसको लगे टोटल 5 जंप्स. ओके, दोनों में क्वेश्चन वैसे ही था, पहले वो ऊपर से नीचे आ रहा था, अब वो नीचे से ऊपर गया. पर अगर ऐसे देखें तो कुल मिला के तो उसने 8 स्टेप्स ही लिए ना, 1 से वो कहाँ तक आया, सिर्फ 9 तक ही आया. बट उसका पैटर्न इस तरीके से था जंप करने का, इसलिए जंप जो है ज़्यादा हुए, पहले केस में 11 और दूसरे केस में 5. देन वी हैव थर्ड पार्ट हेयर, that if the number of steps moved down is represented by a negative integer and the number of steps moved up by positive integers, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following. अब यहाँ पे बोला है कि जब नीचे जा रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव से, ऊपर जा रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से. तो हम पहला केस देख लेते हैं. पहले केस में मंकी ने लिए टोटल 11 स्टेप्स. पहले वो 3 नीचे गया, फिर 2 ऊपर, फिर 3 नीचे, देन 2 स्टेप्स ऊपर,
इस तरीके से उसने टोटल 11 स्टेप्स लिए. सी यू कैन सी हियर, यहाँ पे टोटल 11 टर्म्स होंगे. -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 अगेन -3 + 2 एंड -3. यहाँ पे -3 कितनी बार है? 6 टाइम्स. और 2 कितनी बार है? 5 टाइम्स. इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? -8. यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में ले लिया है कि जो उसका मूवमेंट है डाउन की तरफ उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव से. यहाँ पे -8 शो कर रहा है दैट द मंकी इज गोइंग 8 steps down. Okay. While in the second case, the monkey is going 8 steps up. Therefore, our answer should be +8. अब इसमें वो कैसे जा रहा था? पहले 4 स्टेप्स ऊपर, फिर 2 स्टेप्स नीचे. तो ऊपर जाने के लिए प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो +4 -2 +4 -2 एंड +4. टोटल इसका आएगा 8. Here the positive sign represents that the monkey is going 8 steps up. I really hope students आपको ये आज का वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो. So you are requested to please like, share and subscribe this channel. Okay, that's all for today. Thank you.